Hey friends, in this video we are going to study about DNA extraction from plants using CTAB method. CTAB is a cationic detergent. The extraction requires instruments, chemicals and protocol. The instruments required in the DNA extractions are autoclave, water bath, centrifuge. So talking about autoclave, it's just like a pressure cooker that measures temperature and pressure. It is used to sterilize equipments to keep them contamination free. A high pressure steam is maintained up to 15 Pascal per inch square and temperature is maintained up to 121.6 degree Celsius. For 15 to 20 minutes, we autoclave or we sterilize our equipment to keep them contamination free. Secondly, we use water bath, which is preferred for heating flammable chemicals. So we cannot use autoclave in order to sterilize our flammable chemicals. Hence, we use water bath, in which we can settle the temperature of water manually. And last, we use centrifugation machine, which basically works on the principle of sedimentation and helps to separate different phases of a particle. For example, a cell in the centrifugation machine undergo lysis and shows the aqueous phase or supernatant phase on the upper side, while the dense particles or debris are settled down as a precipitate. So this is how centrifugation machine is used, and it basically works on the principle of sedimentation. Now after the equipments, which is autoclave, water bath and centrifuge, we need to know the chemicals which is required in the extraction of DNA using CTAB method. Over here, the chemicals mainly required are liquid nitrogen, extraction buffer, chloroform ratio isoamyl alcohol, ethanol, which is 70% chilled ethanol, TE buffer, that is tris EDTA buffer, and certain enzymes like RNase and proteinase K. We learn one by one the uses of these chemicals in the extraction method. So let's talk about liquid nitrogen, which is around 190 minus 196 degrees Celsius. The role of liquid nitrogen is to freeze the plant tissues, and the benefit is that it is easy to grind the frozen tissues and cell wall also break down. So for the breakdown of cell membrane and for easy grinding, we freeze the plant tissues using liquid nitrogen having temperature around minus 196 degree Celsius. So that's the use of liquid nitrogen. The second chemical that we use is extraction buffer. The most important buffer is the extraction buffer, which is made up of multiple chemicals. So multiple chemicals are used in the preparation of extraction buffer. The first chemical required is CTAB. We know that this DNA extraction from plant is based on CTAB method. So why the name CTAB is given? The reason is that the main detergent which is used in this extraction technique is CTAB. Now CTAB means cetyl trimethyl ammonium bromide. So cetyl trimethyl ammonium bromide is the chemical which is actually a cationic detergent, and this detergent helps in the cell lysis, and also it removes the polysaccharide which is attached around the membrane, because DNA is extracted from the cells. So cell lysis is very important so that we can extract our DNA. So for this cell lysis and breakdown of cell membrane, 12.5 milliliter amount of CTAB required, which is a cationic detergent for the extraction. So that's about CTAB, which is cetyl trimethyl ammonium bromide. It's a cationic detergent. Next is the 1 molar tris HCl, which is 10 ml in amount. We know it's a tris HCl. It's a buffer. It's a buffer, and the function of buffer is to maintain the pH. So 1 molar in concentration it is taken, and around 10 ml in amount, and it maintains the pH because we know that DNA is pH sensitive. So for the extraction technique, we need to maintain the pH of whole solution. So we're done with the help of tris HCl. Now the next chemical which is used in the extraction buffer is 0.5 molar EDTA, which is taken in 5 ml amount. EDTA expands for ethyl diamine tetraacetic acid. This ethyl diamine tetraacetic acid is actually a chelating agent. EDTA is a chelating agent that chelates magnesium, which is the cofactor of DNAs. जो हमारा DNA होता है सेल के अंदर, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा DNA,
तो उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम डीएनएज बोलते हैं। डीएनएज का काम होता है जो डीएनए जो है मेम्ब्रेन सेल से बाहर निकल रहा है या न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है उसको डिग्रेड कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन के लिए डीएनएज जो है सेल मेम्ब्रेन में और साइटोप्लाज्म में जो है मौजूद होता है। अब डीएनएज जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता। इट इज़ फंक्शनल व्हेन इट हैज़ मैग्नीशियम विद इट एज अ कोफैक्टर। तो ये तभी काम करेगा जब मैग्नीशियम इसके साथ होगा। तो यहाँ पे ईडीटी हम डालते हैं, वो एक चिलेटिंग एजेंट की तरह होता है जो कि मैग्नीशियम को ही पकड़ लेता है, मैग्नीशियम को एक अपने अंदर सेंट्रल आयन की तरह बिठा लेता है। तो इट्स अ चिलेटिंग एजेंट दैट चिलेट्स मैग्नीशियम, जिसके कारण से डीएनए जो है इसके साथ मिल नहीं पाता और इसके साथ मिलके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता। हेंस ईडीटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेनिंग द डीएनए। जैसे ही डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो डीएनए के एक्सट्रैक्शन में जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा तो इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द सेल मेम्ब्रेन वी ऑब्जर्व देयर आर सो मेनी डीएनएज प्रेजेंट अराउंड द मेम्ब्रेन एज वेल एज दीज मैग्नीशियम्स आर प्रेजेंट एज अ कोफैक्टर। तो मैग्नीशियम और डीएनएज जो है ये प्रेजेंट है। तो हमें ईडीटी जैसे ही हम डालेंगे तो ईडीटी क्या करेगा, मैग्नीशियम को चिलेट कर लेगा, जिसके कारण डीएनएज जो है वो जो है डीएनए को अटैक नहीं कर सकता, उसको डिग्रेड नहीं कर सकता जब आफ्टर द लाइसिस ऑफ द सेल। So we can see that DNAs plus magnesium when they both are together they are in the active state. But अगर हम EDT को चिलेट कर लेंगे तो DNAs जो है वो इनएक्टिव ही रहेगा। तो अभी तक हमने देखा है कि एक्सट्रैक्शन बफर के अंदर हमने CTAB, ट्रिस HCl और 0.5 मोलर EDT को ऐड किया है। अब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे 5 मोलर कंसनट्रेशन में सोडियम क्लोराइड, 30 ml अमाउंट में इसको यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का काम है टू न्यूट्रलाइज द डीएनए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है वो एक ट्यूब के अंदर चल रही है, जो हम प्रोटोकॉल के अंदर भी पढ़ेंगे। होता क्या है कि अगर हम डीएनए की नेचर को पढ़ें तो हमें पता है उसके पास फॉस्फेट एंड्स होते हैं और जो फॉस्फेट एंड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज एंड्स होते हैं। यहाँ पे जो फॉस्फेट होता है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जितने भी हमारे पास डीएनए हैं उनके पास वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वी नो दैट डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज इन नेचर, जिसके कारण जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर जो है सेंट्रिफिकेशन ट्यूब के अंदर जो है ये जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये जो रिपेल करने के चक्कर में चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस, तो ये रिपेल करने के चक्कर में क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। और सेटल डाउन नहीं होंगे तो ऊपर ही जो है रिपेल होते रहेंगे एक दूसरे से और वो नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। तो उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड में हमें पता है Na इज़ पॉजिटिव इन नेचर एंड इसकी जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो दिखाता है फॉस्फेट के साथ। तो Na जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो होता क्या है, ये जो सोडियम है ये फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाता है और क्या कर देता है, डीएनए को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जितने ये नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट होते हैं सबके पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सोडियम प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण कोई भी रिपेल नहीं हो पाता एक दूसरे से। और जब यहाँ पे कोई चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे तो वो बहुत ही आराम से जो है सारा का सारा डीएनए जो है सेटल डाउन हो जाएगा और प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम सोडियम क्लोराइड 5 मोलर कंसनट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, इसका काम होता है टू न्यूट्रलाइज द डीएनए। तो अभी तक हमने एक्सट्रैक्शन बफर में देखा है, हमने CTAB डाला, ट्रिस HCl डाला, EDT डाला और NaCl डाला। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं दैट इज PVP। PVP इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। पॉलीविनाइल पायरोलिडोन जो है एक हमारे पास एक केमिकल है जिसको 10% कंसनट्रेशन में 200 माइक्रोलीटर अमाउंट में यूज़ किया जाता है। जो PVP है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जो है डीएनए जो है प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स की नेचर होती है कि प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलीफिनोल्स कंटेन करते हैं और इन्हीं पॉलीफिनोल्स के चक्कर में जो है PCR और डीएनए प्योरीफिकेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो इन पॉलीफिनोल्स के साथ डील करने के लिए हमें PVP ऐड करना पड़ता है। PVP क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारे के सारे पॉलीफिनोल्स को।
तो पॉलीफिनॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, जो प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और ये हिंडर क्रिएट करते हैं पीसीआर और डीएनए प्योरिफिकेशन में, तो इनसे डील करने के लिए, पॉलीफिनॉल से डील करने के लिए वी ऐड पीवीपी विच इज़ पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन, राइट. After that we add beta mercaptoethanol. I think it's known to everybody that it's a strong reducing agent which breaks bonds in proteins as well. हम जो है बीटा मरकैप्टोएथेनॉल जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं. तो ये जो है 200 माइक्रोलीटर अमाउंट में होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इसका काम भी होता है जो प्लांट्स में बहुत सारे टेनिन्स और पॉलीफिनोल्स होते हैं उनको रिमूव करवाना. तो पॉलीफिनोल्स टेनिन्स को रिमूव करवाने का काम दो चीज़ें के यहाँ पे हम डालते हैं करने के लिए, विच इज़ पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन, एंड नेक्स्ट इज़ दी बीटा मरकैप्टोएथेनॉल विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. अभी तक हमने देखा है कि हमने सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन डाला, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन बफर तैयार किया. एक्सट्रैक्शन बफर हमने देख लिया कि मिक्सचर ऑफ केमिकल से बनता है, और यहाँ पे हमने सी टैप सबसे पहले डाला था जो कि एक कैटाइनिक डिटर्जेंट है, लाइसिस क्रिएट करता है. उसके बाद हमने ट्रिस HCl डाला जो कि पीएच मेंटेन करता है एज अ बफर. फिर उसके बाद हमने EDTA का काम देखा विच इज़ अ चिलेटिंग एजेंट. नेक्स्ट वी सॉ सोडियम क्लोराइड जो कि न्यूट्रलाइज करता है डीएनए को. फिर हमने पीवीपी और बीटा मरकैप्टोएथेनॉल डाला जो कि एब्जॉर्ब करता है पॉलीफिनॉल्स और टेनिन्स को. लास्ट जो हम एक्सट्रैक्शन बफर में डालते हैं दैट इज डिस्टिल्ड वाटर अराउंड 40 ml इन अमाउंट. सो दिस इज़ हाउ आर एक्सट्रैक्शन बफर इज़ प्रिपेयर्ड. तो एक्सट्रैक्शन बफर में हमने क्या क्या देखा? एक्सट्रैक्शन बफर में हमने सी टैप देखा, ट्रिस HCl देखा, EDTA देखा, NaCl, PVP, बीटा मरकैप्टोएथेनॉल एंड डिस्टिल्ड वाटर. So this is how we prepare extraction buffer in case of CTAB method. अब जो नेक्स्ट केमिकल हम DNA एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लोरोफॉर्म रेशो आइसोएमाइल एल्कोहल. ये रेशो प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. तो क्लोरोफॉर्म रेशो आइसोएमाइल एल्कोहल यहाँ पे डाला जाता है. अब क्लोरोफॉर्म का काम हमने RNA एक्सट्रैक्शन में भी देख रखा है. क्लोरोफॉर्म का हमेशा कभी भी एक्सट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ इसलिए सो दैट इट कैन रिमूव लिपिड्स एंड फैट्स फ्रॉम दी सेल. तो जो एक्सट्रैक्शन में जो है लिपिड्स और फैट्स को पूरी तरीके से रिमूव करने का काम क्लोरोफॉर्म का होता है, जबकि आइसोएमाइल अल्कोहल यहाँ पे हम एज एन एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह डाल रहे हैं. अब आप बोलोगे कि फॉर्म का यहाँ पे क्या हो जाता है कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट हमें डालना पड़ता है. तो लेट मी टेल यू, जो हमने सी टैप डिटर्जेंट यूज़ किया है दैट इज़ सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड विच इज़ अ कैटाइनिक डिटर्जेंट. तो ये डिटर्जेंट है तो फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, झाग बहुत ज़्यादा बनेगी. और सिंस वी हैव फिनोल्स इन आर सैम्पल, हमारे प्लांट्स में जो है बहुत सारा फिनोल होता है तो उसके कारण में बहुत ज़्यादा झाग या फिनोल फॉर्म बनने की जो है कैपेबिलिटी होती है. तो इतना ज़्यादा फॉर्म जो है उसको कम करना है, उसके लिए वी यूज़ आइसोएमाइल अल्कोहल विच इज़ एन एंटी फॉर्मिंग एजेंट. राइट, आफ्टर दिस वी ऐड इथेनॉल. इथेनॉल जो है हम 70% चिल्ड इथेनॉल ही हमेशा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यही जो है डीएनए की पीपीटी बनाने में, प्रेसिपिटेट करने में मदद करता है. एंड वी नो दैट इथेनॉल इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो इथेनॉल जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि डीएनए के आसपास से जितना भी लिक्विड या वाटर कंटेंट होता है उसको रिमूव कराता है, जिसके कारण से जो डीएनए है उसकी प्रेसिपिटेट्स बन पाते हैं. फिर उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो केमिकल होता है दैट इज़ TE बफर. दिस इज़ ट्रिस EDTA बफर. तो इस बफर का इस्तेमाल करके हम जो है अपना एक्सट्रैक्टेड डीएनए स्टोर करते हैं. इसके अलावा हम कुछ एडिशनल केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर हाई अमाउंट ऑफ प्योरीफिकेशन. तो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए वी नीड एडिशनल केमिकल्स सच एज RNAs एंड प्रोटीनेज के. RNAs जो है वो RNA को डिग्रेड कर देगा, प्रोटीनेज के जो है प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देंगे. क्यों इनकी डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, आरएनए और प्रोटीन्स हमें नहीं एक्सट्रैक्ट करने और ना ही हमें चाहिए. तो उसको रिमूव करने के लिए वी ऐड RNAs एंड प्रोटीनेज के. सो दिस इज हाउ ऑल दीज केमिकल्स आर रिक्वायर्ड इन डीएनए एक्सट्रैक्शन बाय CTAB मेथड. तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. हमने शुरू में देखा है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में विच इज़ ऑटोक्लेव, वाटर बाथ एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन. उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल्स हमें कुछ रिक्वायर्ड होते हैं. सबसे पहले हमने देखा लिक्विड नाइट्रोजन, देन वी सो एक्सट्रैक्शन बफर. Extraction buffer is itself made up of mixture of chemicals such as CTAB, Tris HCl, EDTA, NaCl, PVP, बीटा मरकैप्टोएथेनॉल एंड डिस्टिल्ड वाटर. फिर उसके बाद हमने देखा, हमने डाला क्लोरोफॉर्म रेशो आइसोएमाइल अल्कोहल, इथेनॉल, TE बफर, RNAs एंड प्रोटीनेज के.
So this is all about the chemicals which is required in extraction method. Next we see the procedure or protocol of DNA extraction of CTAB method. सबसे पहले हमें प्लांट्स के लीव्स चाहिए जिनको हम ग्राइंड करते हैं. यहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं. हमने देखा है कि लिक्विड नाइट्रोजन का काम क्या होता है. इट एक्चुअली हेल्प्स इन द फ्रीजिंग द सेल टिश्यू सो वी कैन इजीली ग्राइंड एंड ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल्स. तो प्लांट जो है उसके लीव्स लेंगे, उनको हम ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड करने के बाद हम उनको जो है उसके अंदर जो है हम एक्सट्रैक्शन बफर डालेंगे. और हमें पता है एक्सट्रैक्शन बफर अभी किस तरीके से बनता है. अच्छे से मिक्स करेंगे. ये हम सारे के सारे जो है एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है उसमें सब करते हैं. पहले प्लांट के लीव्स को अच्छे से ग्राइंड करके उसका जो सारा का सारा पेस्ट है वो एक ट्यूब में डालेंगे. फिर उसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन बफर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे. फिर मिक्स करने के बाद हम इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट इन वाटर बाथ अराउंड एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसको इंक्यूबेट करने के बाद हम सुबह क्या करेंगे, फिर उसमें डालेंगे क्लोरोफॉर्म रेशो आइसोअमाइल अल्कोहल. फिर उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे 10,000 RPM पे. उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक क्या कहते हैं फेजेस आ जाते हैं. उन सभी फेजेस में से जो डेब्रीज जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी उसका हमें कुछ नहीं डेब्रीज जो नहीं सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे 10,000 RPM पे. उसके बाद हम एक्वस फेज जो है उसको ले लेंगे और बाकी जितनी भी डेब्रीज जो सेटल डाउन होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद हमने एक्वस फेज लिया और फिर बाकी सारा डिस्कार्ड कर दिया मटेरियल. उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म और आइसोअमाइल अल्कोहल की रेशो हम डालेंगे. फिर सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे और फिर हम इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे. मतलब सेंट्रीफ्यूगेट करना, एक्वस फेज लेना और फिर क्लोरोफॉर्म रेशो आइसोअमाइल अल्कोहल डालना. इसको हम 2 से 3 बार स्टेप को रिपीट करेंगे. तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनिशियल कुछ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करेंगे. लास्ट में हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट को डालते हैं अलॉन्ग विथ चिल्ड 70% इथेनॉल और इसको हम सारी रात जो है रख देते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं एट -20 डिग्री सेल्सियस सो दैट DNA के जो है प्रेसिपिटेशंस बन सके. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DNA की PPTs यहाँ पे तैयार हो जाती हैं. प्रोटोकॉल जो है हम ज़्यादा प्रिसाइज वे में भी पढ़ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द नीड ऑफ केमिकल, द यूजेस ऑफ केमिकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल के आपको बेसिक्स पता होने चाहिए यहाँ पे कि किस तरह से होते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सर्च इन द at various platforms about the protocol of DNA extraction. So this is whole about DNA extraction from plants using CTAB method. I hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.